Very good morning class. We are going to start with chapter number 7 fractions exercise 7.4. Question number 1. Write the shaded portion as fraction. Whatever the figure is given, you have to write the shaded portion as fraction. And next question is to arrange them in ascending and descending also using the smaller equal to or greater sign. So let's start with the question number 1. Here A, the circle is given, okay, and you have to find out how many total parts, and out of total parts how many parts are shaded, okay. So our first circle, total we can see that your parts are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total 8 parts, shaded 1, 2, 3, okay. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 parts, shaded 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 part. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, all the parts 8, shaded are 4. In next you can see only one part shaded, total is 8. So here you can see that the denominators are same, that is 8 is the. अब हमको क्या करना है, ascending order में लिखना है. अच्छा, जब denominator same दिया हो तो अबे हमें सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो राइटिंग विद द असेंडिंग ऑर्डर, which number will come first? Number 1 upon 8 will come first, okay, which is smaller, then 3 upon 8, and 3 upon 8 is smaller than 4, and 4 is smaller than 6. तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया. अब डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बिग टू स्मॉल वी कैन राइट. तो पहले क्या आ जाएगा, 6 upon 8 आ जाएगा. 6 upon 8 is greater than 4 upon 8. 4 upon 8 is greater than 2 upon 8, and 2 upon 8 is greater than 1 upon 8. So both the way we have written. Moving next to question number B. Here total shaded part for total parts for all the square you can see is 9. Okay. Total कितने parts हैं सभी square में? 9 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. पूरे स्क्वायर में 9 ही टोटल पार्ट्स है, तो डिनोमिनेटर में सबके क्या आएगा, 9 ही आएगा. ठीक है. सो फर्स्ट टोटल 9, शेडेड कितने हैं, यू कैन काउंट, ओनली वन इज नॉट देयर, सो इट इज 8. ओके. हियर 4 शेडेड, so 4 upon 9. Here 3 shaded, so 3 upon 9, and here 6 shaded, so 6 upon 9. Now you can write this figure as ascending order. So writing in the ascending order, डिनोमिनेटर सबके सेम है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है. सो 3 is less than 4, 4 is less than 6, and 6 is less than 8. So write down the fraction form. 3 upon 9 less than 4 upon 9. It's less than 6 upon 9, and 6 upon 9 is less than 8 upon 9. Writing in the descending order, 8 upon 9 greater than 6 upon 9, which is greater than 4 upon 9, which is greater than 2 upon 9. So this is our solution for the question A and question B. Let us check out with the question number C. Now here the question number 6 is given. Show 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 and 6 by 6 on the number line. Put appropriate sign between the fractions given here. Whatever the fractions are given, that we have to compare and write down the sign. And first thing we have to show these fractions on the number line. So first thing what we will do, we will find out whether the denominator same है, पहले वो find out करना है. So yes, here you can see that all the denominator have 6. सारे fraction में denominator क्या है, 6 दे रखा है. तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले सबको ascending order में arrange करना है. So how we will arrange, we can write here 2 upon 6. ठीक है. उसके बाद क्या आएगा, 4 upon 6 आएगा. उसके बाद 6 upon 6 एंड लास्ट में 8 upon 6. ठीक है. अच्छा, अब तो हमारा सेकंड स्टेप था कि हमें इनिशियल स्टार्ट डिवीजन करना है कि ये नंबर लाइन कहाँ से शुरू होगी कहाँ तक जाएगी. ठीक है. तो पहले हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 6 से. सो व्हाट वी विल हैव डेसिमल, 6 zeros are 0, 20 and 6 3s are 18. So it's remainder 2. Okay. Now लास्ट नंबर हमारा क्या है, 8 upon 6 है. सो 8 को डिवाइड करेंगे 6 से.
So 6, 1 multiply is 6. So it is 2, 1 decimal, 0, then 6 3s are 18. So again here our remainder is 2. अच्छा, तो हमारा जो फर्स्ट डेसिमल, फर्स्ट का आंसर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो हमारा लास्ट का जो नंबर है वो 1.3 है। मीन्स जो हमारी नंबर लाइन है वो 0 और 2 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि ये 1.3 है तो 1.3 के बाद लास्ट होल नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा। मतलब हमारी जो नंबर लाइन है वो 0 to 2 के बीच में है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट अस प्लॉट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें इनिशियल तो मिल ही गया है। हमारा इनिशियल क्या है? 0, सो वी विल स्टार्ट अपॉन बाय 0। सो फर्स्ट इज आवर 0/6, देन 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Okay, 6 divided by 6 is 1, so that is our whole number 1. Moving next, 6 के बाद आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, last 12/6. Okay, 12 divided by 6 is 2, so this is our whole number 2. Okay, now let us plot the numbers given here. पहला क्या है? 2/6 है, तो 2/6 हमारा यहाँ पर है। Okay, this is 2/6. Next है 4/6, so it lies here. This is 4/6. Next 6/6, that is whole number. Okay, that lies here. Next is 8/6, so after 1 it is 8/6. ठीक है, so 8/6 यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? जैसे ही हम लोग राइट साइड पे मूव करते हैं द नंबर्स बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर। ठीक है, नंबर लाइन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एज वी मूव टू द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन द नंबर्स बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर। एज 0 उससे बड़ा क्या है? 1, 1 से बड़ा क्या है? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, मतलब नंबर्स बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर। अच्छा, अब यही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी फ्रैक्शन दे रखे हैं उसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमें उसे बताना है which number is greater. Now first is 5/6 and 2/6. अच्छा, 5/6 कहाँ है? ये रहा 5/6 और 2/6 is here. So 5/6 lies on the right side. तो जो भी नंबर राइट साइड है नंबर लाइन में वो बिगर है। ठीक है, वही ग्रेटर नंबर है। So 2/6 is left side और right side में क्या है? 5/6. So 5/6 is greater. अब 3/6 and 0. अच्छा, 0 is here left hand side, right hand side में 3/6 है, तो which number is greater? 3/6. Next 1/6 and another is 6/6. 1/6 is here, यहाँ पर है और 6/6 राइट साइड में है। 1 whole number 1, so which is greater? 6/6. 8/6 and 5/6. अब 8/6 यहाँ है राइट साइड में और 5/6 लेफ्ट साइड में है, तो which number is greater on the right side is which number? 8/6. So 8/6 is greater. So isn't it fun for comparing the numbers which right side is there, that is greater, and which is on the left side, that is smaller. Okay, so let us move to the next part, next question. So my question number 2 is compare the fractions and put appropriate sign. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट सम देखते हैं। फ्रैक्शन है 3/6 and 5/6. Looking at the denominator, the fractions are like fractions. तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है? न्यूमरेटर चेक करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 5/6 का। So which is greater? 5/6. You can write that 5/6 is bigger. Clear? Next 1/7 and 1/4. अच्छा, अब ये दोनों यूनिट फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 1 है इसलिए ये यूनिट फ्रैक्शन है। अच्छा, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? हमें जिसका भी न्यूमरेटर 1 है उसका हम लोग डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अब इसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है। यहाँ हमेशा हम लोग बिगर नंबर ग्रेटर करते थे न्यूमरेटर में, लेकिन यूनिट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा है
वो फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, चेक। हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। एक ही स्ट्रिप हम लोग सेम लेते हैं। ओके, ये हमारी स्ट्रिप है। ओके, सेम लेंथ सेम है स्ट्रिप की। फर्स्ट में 7 पार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और उसका 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, ये 1 पार्ट शेडेड है। ओके, अब दूसरा सेम स्ट्रिप है, उसके हम 4 पार्ट्स करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, अब इसका पार्ट कितना शेड है? 1 शेड है। अच्छा, अब ये फिगर से आपको कौन सा फ्रैक्शन बड़ा दिख रहा है? 1/4। ठीक है, तो आपको जब यूनिट फ्रैक्शन न्यूमरेटर 1 दे रखा है, तो जब आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वही फ्रैक्शन बड़ा है। ओके, अगर किसी को ये कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया है तो आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड भी कर सकते हैं। जैसे वो हमने किया था ना 1/7 1/4 when you cross multiply. Okay, so what will come here? 4 into 1 and 1 into 7. Which number is greater? 4 or 7? 7 is greater. Okay, अब 7 किसका फ्रैक्शन आया? 1/4 का। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 1/4। क्लियर? या तो आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कौन चेक कर सकते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करते हैं, या तो फिर आप एलसीएम लेके कर सकते हो। एलसीएम लेके करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम मेथड में 7 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 7 into 4 is 28। ठीक है, 1/7 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, बोथ द साइड। सो वी विल हैव 4/28। ओके, और 1/4 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो वी विल गेट 7/28। किसका न्यूमरेटर बड़ा है? 7/28 का। अच्छा, 7/28 किसका आंसर है? 1/4 का। सो अल्टीमेटली 1/4 इज ग्रेटर। सो ये तीनों मेथड आप करके देख सकते हैं। तीनों मेथड में यू आर सीइंग दैट 1/4 इज ग्रेटर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, 4/5 एंड 5/5। ऑब्वियसली ऊपर न्यूमरेटर देखा जाए तो कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है? 5 बड़ा है। सो 5/5 इज बिगर। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आप एलसीएम मेथड भी ले सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 into 7 it is equal to 21। 3 into 7 is 21 and 3 into 5 is 15. For here 3 into 5 is 15. Which is bigger? 21 is bigger. और ये किसका फ्रैक्शन है? 3/5 का। So 3/5 is bigger. ठीक है, या तो हम लोग एलसीएम मेथड करते हैं। एलसीएम क्या है? दोनों प्राइम नंबर है, 35 आया एलसीएम। सो हम लोग क्या करेंगे? 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से बोथ द साइड, सो वी विल हैव 21/35। क्लियर? और 3/7 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से बोथ द साइड, so we will have 15/35. 21/35 and another is 15/35. So which number is greater here? 21. न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है? 21 बड़ा है। तो 21 किसका फ्रैक्शन है? 3/5 का। ठीक है, so 3/5 is bigger. Please practice this fraction at home. Try this comparing twice. Okay, practice करिए घर में, तब आपको अच्छे से आ जाएगा। So moving to the next question. अच्छा, now question number 4. Here figures are given. You have to write the appropriate sign in the given fraction, and you have to find out this fraction by looking at the figure given here. ठीक है, यहाँ पे जो भी स्ट्रिप सेम है, पार्टीशन अलग अलग किए गए हैं। फर्स्ट स्ट्रिप होल नंबर 1, ठीक है, 0 से 1 तक ही है। सेकेंड स्ट्रिप में 2 पार्टीशन है। ओके, दैट इज योर 0 1/2 and then it is 2/2. ओके, थर्ड स्ट्रिप में 3 पार्टीशन है, फोर्थ स्ट्रिप में 4 पार्टीशन है, फिफ्थ में 5 पार्टीशन है और लास्ट में 6 पार्टीशन है। ठीक है, अब ये पार्टीशन जो भी दे रखे हैं स्ट्रिप में वही ध्यान में रखना है, और वो फ्रैक्शन जो भी दे रखे हैं उसको हमें शेड करना है
जो भी शेडेड पोर्शन बड़ा है वही नंबर बड़ा है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज 1/6 एंड 1/3। 1/6 कहाँ होगा, जिसका पार्टीशन डिनोमिनेटर क्या है 6 है, मतलब ये स्ट्रिप कौन सी है 6 पार्टीशन वाली है। अब उसमें शेडेड पार्ट कितना है 1/6, तो हम शेड करें 1/6 यहाँ तक, फर्स्ट पार्ट ओनली वन पार्ट इज शेडेड, तो हमने क्या किया वन पार्ट शेड कर देते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 1/3, अब 1/3 यहाँ पे है तो आप इसको शेड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शेडिंग से आपको कैसे पता चल रहा है कौन सा पार्ट ज्यादा बड़ा शेडेड है, 1/3 का शेडेड बड़ा है अकॉर्डिंग टू 1/6, कंपेयरिंग टू 1/6, ठीक है। तो 1/3 is bigger than 1/6, so we will write the sign of greater here, 1/3 is greater। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 and 2/6। अब 3/4 की तरह होगा, पार्टीशन कितना है 4 है, सो पार्टीशन हमारे इधर 4 है तो हम 3/4 शेड करते हैं, ठीक है। 3 टोटल पार्ट्स आर शेडेड, सो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। ये हमने शेड कर लिया 3/4 का। अब 2/6 हम देखते हैं, 2/6 इधर नीचे होगा तो 2/6 शेड करते हैं, 1 पार्ट शेडेड, 2 पार्ट शेडेड। अच्छा, अब आप कंपेयर करो किसके पार्ट ज्यादा शेडेड है, 3/4 के कंपेयर टू 2/6, ठीक है। 2/6 यहीं तक है जबकि 3/4 काफी दूर तक शेडेड है, सो 3/4 इज ग्रेटर हियर। नेक्स्ट इज 2/3 एंड 2/4, ठीक है। अब 2/3 हमारा 3 का पार्टीशन वाला यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पे रहेगा, 2 पार्ट 3 पार्ट में से शेडेड, सो शेडेड, दिस इज फर्स्ट पार्ट शेडेड, दिस इज सेकंड पार्ट शेडेड। अच्छा, और उसके साथ क्या है 2/4, सो 2/4 कहाँ तक शेड होगा, 2 पार्ट्स ऑफ 2 पार्ट आउट ऑफ 4, तो हमने यहाँ पे 2 पार्ट शेड कर दिए, फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब आप कंपेयर करिए, 2/3 का जो पार्ट है वो ज्यादा शेडेड है 2/4 से, ठीक है। सो विच इज ग्रेटर, 2/3, राइट। नेक्स्ट 6/6 एंड 2/3। 6/6 मीन्स all the parts are shaded for 6, ठीक है। तो हम लोग पूरा स्ट्रिप शेड कर देते हैं, ये हमने पूरा 6 पार्ट सारे शेड कर दिए। और दूसरा नंबर क्या है 2/3, तो 2/3 भी यहाँ पे हम शेड कर देते हैं पर्पल कलर से, ठीक है। अच्छा, अब आप ये दोनों स्ट्रिप कंपेयर करिए, which is more shaded part, that is 6/6, so our 6/6 is greater, ठीक है। Moving next 5/6 and 5/5, ठीक है। 5/6 and 5/5, so 5/6 में क्या होगा, 5 part out of 6 is shaded, okay, 5 part out of 6 shaded, तो 5 पार्ट हम करते हैं, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड दिस इज 5th पार्ट। 6 पार्ट शेडेड नहीं है, 5/6 से मींस 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6 शेडेड। और लास्ट क्या है 5/5, तो हमारा ये जो पूरा है 5 का स्ट्रिप, 5 में से 5 पार्ट शेडेड है, मींस होल स्ट्रिप इज शेडेड। अच्छा, यहाँ व्हिच इज शेडेड मोस्ट, 5/5, means in this figure our 5/5 is bigger. Clear? Here question D is 6/6 compared to 3/3. You can see that when we shade 3 part out of 3 it's completely shaded and 6 part out of 6 is completely shaded. So both fractions are equal to each other. So moving to the next question. Question number 5, again we have to put the bigger, greater or equal to sign. So how quickly you can do, let us see. First numerator 1 1 both the side, तो हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, so 1/2 is greater, 2/4 और 3/6। अब क्विकली कैसे करेंगे, इसको हम दोनों को सिंपलेस्ट
10 is greater. 3 into 3 is 9. So here it is 9. 5 into 2 is 10. Here it is 10. So it is greater. This fraction is greater. Okay. Next. 3 upon 4 and 2 upon 8. फटाफट हम लोग इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मल्टीप्लाई 2 बोथ द साइड. तो ये क्या हो गया? 6 upon 8. तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है? 6 का. So 3 upon 4 is greater. 3 upon 5, 6 upon 5. Denominator are same. Numerator check करो कौन सा बड़ा है? 6. Clear? फटाफट. Next. No, both the denominator are same. 9. Number कौन सा बड़ा है? 7. So 7 is bigger. Next. 1 upon 4 and 2 upon 8. Quickly converting 2 into 1. 2 2s are 4. 1 upon 4 is equal to 1 upon 4. Next. Here. What you will have here? Either 10 दे रखा है, either 5 दे रखा है. Quickly convert to 5 10. 2 into 3 6. 3 upon 5 4 upon 5. Which is bigger? 4 upon 5. Next. 3 upon 4 7 upon 8. या तो आप इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके 2 into 2. तो ये 8 आ जाएगा. So it is 6 upon 8. And here it is 7 upon 8. But which is bigger? 6 or 7? 7. So this fraction is bigger. 7 upon 8. Next. 6 upon 10. 4 upon 5. 2 into 3 6. 2 into 5 same question it is. So 4 upon 5 is bigger. Next question. 5 upon 7 and 15 upon 21. Convert. 3 5s are 15, 3 7s are 21. So our fraction is 5 upon 7 and 5 upon 7. So both are equal. Our remaining question is same it is. Okay. Okay. So we are done with the question number 5. Let us move to question number